भाग्य है कि आज हमारे बीच दिल्ली से एक्सपर्ट राज सर हैं और राज सर के बारे में मैं जितना आपसे बोलूं वो कम होगा, क्योंकि राज सर आज जिस ऊंचाई पर हैं वो उनकी मेहनत के दम पे पॉसिबल हुआ है। और हम और आप सब अगर मेहनत करें तो हम भी इस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो राज सर हमारे जो हैं दिल्ली में राज सर आर एस ई सी के डायरेक्टर हैं और राज सर डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश कम्युनिकेशन, जापानीज़, जर्मन, इन लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और इन्हीं में से आप देख पा रहे होंगे कि रवि सर यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं जो सीए हैं और ये भी राज सर के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जितना आप राज सर से सीखना चाहें उतना सीखें। आपके माइंड में अगर कोई डाउट है, क्वेरी है फॉर फ्यूचर related or job selection related, how to crack job, so you can ask to Raj sir. So welcome Raj sir once again. Okay, hello dear students and my dear and sisters and director of AKS who has given me nice platform for my state level student. Good afternoon to all of you. First of all, I would like to introduce myself, that who am I and why am I here today. This is Rajkumar, 40 years old from Delhi at Sakarpur. As far as my qualification, I passed my some qualification from Nagaur. Then I went to Maihar and I completed my post graduation from there. Then I went to Jabalpur and I also completed my some qualification from there. After that, I shifted Delhi and I have done so many courses from there. And currently, I'm a teacher of languages and I have been teaching languages for many years. I have lots of experience for that. This is a golden opportunity for me that I am among my state level students and also director Akhilesh sir and Mr. Hari Mohan Misra ji. You all know very well about the AKS. This is a really nice university which has been providing good service, good training, good education for many years. And so many numbers of students are every corner of the India. They are doing their well and making the name of AKS every corner, and they are earning lots of money by leaps and bounds. So you all are very lucky that you are a student of AKS and you are under the guiding of Akhilesh sir and Hari Mohan sir. I am thankful for them that they have given me opportunity. So today I am here to tell what is the value of the communication skill. Dear students, you all know you can just complete your course. There are so many courses. If you want to just introduce yourself, then what will give you success? Communication skills and our personality. If we have good personality, definitely we will get a golden opportunity in our life. Nobody can stop us to grow ahead. We can be also number one. There is a much role of the communication skill in our life. I am also in front of you, and whatever am I in Delhi because of the communication skill. How to improve our communication skill? How to improve ourselves and introduce in front of everyone? It is depend on us. How do we introduce? Personality development. What is the personality development? We have to just prepare good dress, speak good dress, how to sit, how to talk, how to behave with everyone. This is personality. As far as the question of my English journey language started, I would like to tell you it was a story you will not able to believe on this, because when I selected for a post of PhD, then I was not able to speak English over there.
Then I thought that I should also learn English, but I had no good teacher. Then I had a question that who will just guide me in English, because I was Hindi medium student, and you all know I also belong from Satna, and everybody know that there is a small village Raikwara, and there is also Jawahar Navodaya Vidyalaya. It is famous by that. I born over there, and I completed my education from there. And my younger brother, who is Satish Upadhyay, he is an IPS officer at Dhar. Dhar is a district in MP. You know that I was a priest. Nobody can believe on that I was a priest. सर हमारे बच्चे भी हिंदी को ज्यादा अच्छा प्रेफर करेंगे अगर आप अपना एक्सपीरियंस हिंदी में शेयर करेंगे। ओके सर, ओके। एक्चुअली मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको जर्नी अपनी शेयर करना चाहूँगा। मैं एक ब्राह्मण खानदान से हूँ और मैं मैहर माता शारदा माता के चरणों में सेवा करता था। वहाँ मैं एक छोटा सा पुजारी था। दैट टाइम आई हैड नो एनी ऑप्शन टू अर्न मनी। I used to go there and just spoke Sanskrit. I speak some Sanskrit. If you all have doubt, यदि आप सबको डाउट है तो मैं कुछ संस्कृत वर्ड बोल के दिखाता हूँ। नहीं तो आजकल क्या होता है, लोग समझते हैं कि नहीं, सब कॉक एंड बोल स्टोरी बताते हैं और अपना काम बना के चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हरि मोहन जी जो आपके यहाँ पढ़ाते हैं वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। उन्होंने मुझे गाइड किया, थोड़ा बहुत सिखाया उन्होंने भी, फिर मैं आगे बढ़ा। मैं कुछ संस्कृत वर्ड बोलता हूँ, देन यू कैन जस्ट ट्रस्ट दैट आई एम फ्रॉम देयर और नॉट। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावत तथा बंगला सिद्ध विद्या चा मातंगी कमलातिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता एषा विद्या प्रकृतिता सर्वदंतेश गोविता ओम श्री भीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्री भीम श्री महालक्ष्मी। अब आपको बिलीव हो गया होगा कि हाँ, मैं वहाँ था और मैं आपके ही डिस्ट्रिक्ट से निकला हुआ एक बच्चा हूँ, जहाँ पे जिसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। जब मेरा सिलेक्शन पुणे में MBA के लिए हुआ, मैं पुणे विजिट करने गया, एडमिशन के लिए गया। व्हेन आई सॉ देयर ऑल वर स्पीकिंग वेरी नाइस इंग्लिश ओवर देयर, आई वाज जस्ट लुकिंग देयर फेस, आई केप्ट ऑन लुकिंग देम। Oh my God, how is it possible that they are speaking English? Can it be possible also? मैं जब देखा कि वहाँ सब इंग्लिश में बातें कर रहे हैं और हम हिंदी बोल रहे हैं, even I was not able to understand that what are they saying, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तब मुझे वैल्यू पता चला कि ये इंग्लिश की वैल्यू है। इसके बाद मैंने सोचा यार, I will have to learn English by hook or by crook. I had knowledge of English drop in the ocean. मेरे पास छोटी मात्रा में नॉलेज था इंग्लिश का। I had lots of education. इतनी एजुकेशन के बाद मैं अपनी क्वालिफिकेशन को बता नहीं पा रहा था कि what am I and मुझे क्या अचीव करना है, because everything was needed in English. मैंने सोचा यदि इंग्लिश नहीं होगी मेरे जीवन में तो क्या मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा कि मैंने क्या किया है। आई हैव लॉट्स ऑफ क्वालिफिकेशन। मैंने सोचा नहीं, आई शुड मूव टूवर्ड्स द इंग्लिश, और मैं इंग्लिश की ओर मुड़ा। आई डिसाइडेड दैट आई विल लीव प्रीस्ट जॉब एट शारदाबाई मंदिर। मैंने सोचा कि अब मुझे ये जॉब छोड़ देना चाहिए क्योंकि देयर इज नॉट मच कैरियर, एंड आई डिसाइडेड that and I started to search coaching of English. मैहर में हमने कोचिंग सर्च करना चालू किया और घंटा घर वहाँ पे है, और वहाँ एक कोचिंग मिली। When I joined coaching there, then they took my test, I was totally zero. उन्होंने कहा नहीं, आप सिर्फ पंडिताई काम करिए पंडित जी, आपके बस की इंग्लिश नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, कोई जन्म से ऐसा थोड़ी होता है, हम भी सीख सकते हैं, हो सकता है हम आपसे बेटर बन जाएं सर। He got angry on me. गुस्सा हुए मेरे पर, कहे नहीं, गधे घोड़े नहीं बन सकते हैं। मैं कहा मे बी सर दे कैन बिकम, नोबडी हैज सीन द फ्यूचर। बोले नहीं, गधे घोड़े नहीं बन सकते हैं। मैंने प्रॉमिस किया उनसे, सर ये गधा घोड़ा बनेगा ही बनेगा। बोले नहीं, देयर इज नो पॉसिबल, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल
ये गधा तो घोड़ा बन ही नहीं सकता। आई टोल्ड टू सर, सर इम्पॉसिबल की मीनिंग है आई एम पॉसिबल, इट हैज हिडन, ये छिपा हुआ है, बट हम कोई काम करने से पहले ही हार जाते हैं। यार डियर फ्रेंड्स, वी हैवंट डन एनीथिंग एंड वी जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग, देन हाउ कैन वी गेट सक्सेस? सपोज आप कोई भी काम नया शुरू करने से जाते हैं, यू हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी ओवर देयर, इतनी एनर्जी होती है कि आई कांट। सपोज आपने एकेएस में एडमिशन लिया, ओके, उस दिन आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाएंगे, गुड पर्सनालिटी, आपका मैचिंग का सब कुछ होगा, क्लासेस में आप जाएंगे, वेल प्रिपेयर्ड होके जाएंगे। सपोज आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदने के बाद उसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन उसका केयर करते हैं, प्रॉपरली केयर करते हैं, और यू कीप एवरीथिंग इन प्रॉपर प्लेस। आप कोई बुक खरीदते हैं तो बुक में क्या करते हैं, यू स्टार्ट टू टर्न द पेज फ्रॉम द बुक स्टोर, वहीं से पेजे पलटना चालू कर देते हैं और उसे अंटिल यू रीड, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती, पूरा आप देख नहीं लेते हैं, इतना इंटरेस्ट होता है आपको और उस बुक को आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। दोस्तों, यदि ये एनर्जी हम 365 डेज कंटिन्यू रखें तो वी कैन आल्सो बिकम ए बिग गन इन अवर लाइफ, नोबडी कैन स्टॉप अस। हम भी बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता हमें। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल इन इंडिया, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ एग्जाम्पल। हमारी भारत के जो जन्मभूमि है वो कंट्री है एग्जाम्पल। तो आप देखिए कि अवर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ Abdul Kalam ji, he was from Rameshwaram and he had no any idea, and that time he used to go to school on foot, and he also understood value of the education on that time. उस समय उन्हें वैल्यू पता चल गई कि हाँ यार एजुकेशन की क्या वैल्यू है। He accepted that I was born in poor family, but I will not die in poor family. ये सब सच है कि हम पुअर फैमिली में जन्म लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं कर रहा है कि हम पुअर फैमिली में डाई करें, वहां पे मरें। वी हैव ऑप्शन, एंड व्हाट इज दैट ऑप्शन? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, एवरीबॉडी नोज दैट हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस। दोस्तों, फिर यूज करिए ना उस चाबी का। कब यूज करेंगे? फ्रॉम टुडे यू स्टार्ट। हम कोई भी काम, सपोज दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, जापानीज, व्हाट इज दिस। यदि आप एक वोकैबुलरी डेली लिखते हैं तो आप 365 डेज में 365 वोकैबुलरीज लिख लेंगे। हम हार क्यों मान लेते हैं? हम हार इसलिए मान लेते हैं कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, हमें कोई गाइड नहीं करने वाला होता है। इफ एनीबॉडी गाइड अस देन वी विल बी आल्सो विनर। I was telling you that APJ Abdul Kalam, that he decided and set the goal in his life, and he also spoke. सपने वो नहीं होते जो हम सोने में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। हमें ऐसे सपने देखना चाहिए, ऐसा गोल सेट करना चाहिए जिसके पीछे हम भागें। और मैंने भी अपनी लाइफ में DGPAR का इन्वेंशन किया। D मीन्स ड्रीम, मैंने सक्सेस का एक ड्रीम देखा। G मीन्स गोल, मैंने अपना गोल सेट किया। P मीन्स प्लानिंग, उसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई। A मीन्स एक्शन, आई टुक एक्शन, एक्शन लिया। एंड R मीन्स रियलिटी। इफ वी फॉलो DGPAR, really we will be a successful in the world, not in India. There are so many persons who did hard work with their talent. I know that there is also hand of the luck in our mind, in our life. We can also become a great person through the luck. लक तभी आपका साथ देगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे। आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका लक कैसे बनेगा? आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होगा। AKS आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, एक्सपर्ट टीचर्स हैं, इंटेलिजेंट टीचर्स हैं, एंड उन्हें प्रैक्टिकल भी नॉलेज है। दे कैन गिव यू लॉट्स ऑफ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग।
बट वो प्लेटफॉर्म आपको प्रदान कर सकते हैं, बट करना तो आप ही को होगा दोस्तों। जिस तरह से हमने 3G को हटाया और 4G आया और हमने 4G लिया, 4G को हटाया और 5G लिया। कोई मोबाइल आता है, यार ये मॉडल पुराना हो गया, चलो ये लेटेस्ट वर्जन खरीदते हैं, ये नहीं ये पुराना है, लेटेस्ट वर्जन खरीदते हैं। और ऐसे हमारा भी तो वर्जन होना चाहिए दोस्तों। जब तक हम अपना वर्जन अपडेट नहीं करेंगे तो फाइलों का क्या होगा, ये तो करप्ट होती रहेंगी, भरती रहेंगी, खाली होती रहेंगी। इन्हें हमें न्यू वर्जन देना होगा। जैसे हम 1 या 2 साल में अपना मोबाइल चेंज करते हैं और नया मोबाइल खरीदते हैं, वैसे हमको भी अपना अपडेट करना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, इट्स राइट दैट इफ वी वांट टू सी द ड्रीम, फॉर ड्रीम वी नीड ए प्लान। बिना प्लान के कुछ नहीं होता। आप देखेंगे जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, जहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, व्हाट वाज अर्लियर देयर, वहाँ क्या था? वहाँ एक बंजर जमीन थी, वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन लोगों ने सोचा वी कैन डू टू मच थिंग, और वहाँ पे उन्होंने इन्वेंट कर दिया, बिल्डिंग तैयार कर दी, सब कुछ कर दिया और हमें सब कुछ मिल गया। हम लोग पढ़ाई करते हैं, नो डाउट। हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि योर फर्स्ट ड्यूटी इज स्टडी, और हम रेडी होते हैं। यू डोंट नो दैट फ्रॉम वेयर दे जस्ट अरेंज द मनी टू गिव अस फीस। आपको सोचना चाहिए कि वो पैसा जो साल भर हमारे इंस्टीट्यूट में जाता है, कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, जो फीस लाते हैं कहाँ से लाते हैं? एवरी मंथ 3000, 4000, 5000 वो आपकी अरेंज करके देते हैं। यार, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी वेल, एंड व्हाट्स आवर ड्यूटी? Our duty is to only study, and that work we are not doing that thing good. और वो एक ड्यूटी जो हमारे पेरेंट्स द्वारा हमें दी गई है, उसे हम करना नहीं चाहते हैं। क्यों? यार दोस्तों, यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। यू हैव टू डू एवरीथिंग। यू ऑल नो दैट स्टडी इज एन एलिक्सियर ऑफ लाइफ। जीवन का अमृत है पढ़ाई। आई एम जस्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। I just born in poor family, but I didn't want to die in just a poor family. It is right that God has done something different. किसी को poor family में जन्म दिया है, किसी को rich family में दिया है, किसी के पास खाने को नहीं है, but it's a very good that God has done. What is that? God has given a fit personality. हमें भगवान ने एक अच्छी पर्सनालिटी दी है, अच्छा माइंड दिया है। दोस्तों, ये जो 3-4 इंच की जगह है ना, इफ यू वांट टू यूज, इफ यू विल नो हाउ टू यूज दैट डे, यू विल कीप लैक ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। ये 3-4 इंच की जगह है ना, इतनी महान जगह है। जिस दिन आप जान जाएंगे कि ये सब का यूज करने से हम वर्ल्ड के नंबर 1 बन सकते हैं, उस दिन आप नंबर 1 बन ही सकते हैं और बन ही जाएंगे। लेकिन हम नहीं जानते। We are busy in MTF. What is the MTF? I just will explain you after some time. You know, MTFs, mobile, telephone and friend. We don't want to leave these things. Suppose थोड़ा सा मोबाइल हमारा चार्ज नहीं हुआ तो हम सोच, अरे यार, ओ मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है ना, और उसके लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं यार, और चार्ज करते हैं मोबाइल को। और रिचार्ज कभी खत्म हो गया तो भी हम सोचते हैं, यार from where should I manage the money to recharge my mobile, and उसे हम रिचार्ज करते हैं। ये ऐसे हमें अपने माइंड को भी रिचार्ज करना चाहिए। हमें हमारी बैटरी, व्हाट इज द बैटरी ऑफ आवर माइंड, हमें अपने माइंड की बैटरी को, शरीर की बैटरी को भी वो करना चाहिए। आज मोबाइल इज एवरीथिंग। जिसने भी इन्वेंट किया मोबाइल का, सब उसके लिए हमें वी शुड थैंकफुल फॉर देम, because we are connected with all over world with mobile and social media. उन्होंने इतना आविष्कार कर दिया, यार हमने क्या किया? हमने तो सब डेमोलाइज ही किया है, नष्ट ही किया, खाए और बस नष्ट किए और कुछ नहीं किया। तो हमको भी ऐसा कुछ करना होगा कि our parents should be proud of us. You know, success is always difficult. God has also faced the problems, then they became the God.
अब आप सोचेंगे कि बिना हमें कुछ किए हुए सफलता मिल जाए, दैट इज इम्पॉसिबल। आप बिना किए हुए कुछ भी या सब कुछ पाना चाहते हैं तो आपको फिर बिग फैमिली में जन्म लेना पड़ेगा, और वो है नहीं। हम लोग मिडिल क्लास के आते हैं, और कोविड-19 ने तो अभी सबका काम एकदम बेकार ही कर दिया है। दोस्तों, वी हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन आवर लाइफ which we have to recognize and just accept the challenges and prove ourselves that we are also number one and we can do that one. Gentlemen, I was just telling you about my story that जब मैं पुणे गया और वहाँ देखा, इसके बाद मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं भी इंग्लिश सीखूंगा, किसी भी तरीके से इंग्लिश सीखूंगा। और इंग्लिश सीखने के लिए आई डिड सो मच हार्ड वर्क, बिकॉज आपने एक वो कालिदास जी का नाम सुना होगा, who was very foolish. Now after that he became the great Kalidas, the great poet Kalidas, महान कालिदास बने। उससे पहले वो कुछ भी नहीं थे। ऐसे मैं भी वही था इंग्लिश में। I had no any idea about that because we are फ्रॉम हिंदी मीडियम। हमारे लिए क्या होता है कि हम जब भी इंग्लिश हमें पढ़ना होता है तो हम गूंगे बन के पढ़ते हैं, और एग्ज़ाम आता है तो छोटी मोटी गाइड लेकर के हम कुछ ऐसे ले लेते हैं, एप्लीकेशन ले लेते हैं, और 100 में से 50 नंबर का जुगाड़ कर लेते हैं। वो जुगाड़ हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें शॉर्टकट्स नहीं ढूंढना चाहिए, हमें हमेशा ही ऐसे डिफ़िकल्टीज फेस करना चाहिए जिससे हम समझ सकें कि हाँ, इसका क्या यूज होगा। AKS ने आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छी डिग्री, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, एंड आई हैव बीन लिसनिंग अबाउट AKS दैट दिस वन हैज़ बीन गिविंग गुड सर्विस टू द स्टूडेंट्स, और इसकी डिग्री की भी बहुत वैल्यू है। और बहुत जल्दी हो सकता है कि इनकी एक ब्रांच दिल्ली में भी हो, और यहाँ से मुझे थोड़ा सा सेवा करने का मौका मिल जाए। एक्चुअली आई वॉज नॉट रेडी फॉर this, then मेरे फ्रेंड मिस्टर हरि मोहन जी, was my bosom friend, close friend, intimate friend, उन्होंने बहुत दिन से बोला नहीं सर आपको आना पड़ेगा और अपने स्टेट के कुछ स्टूडेंट्स के लिए गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सर हम डिग्री तो देते हैं बट प्लेसमेंट के लिए हमारी कंपनियां, बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ आती हैं, बट थोड़ा बहुत कहीं कुछ स्टूडेंट को कम्युनिकेशन स्किल्स में रह जाता है, तो थोड़ा सा आपको गाइड करना पड़ेगा सर। आई एग्रीड विद हिम, क्योंकि उन्होंने मेरी मदद की थी। व्हेन आई ज्वाइंड इंग्लिश कोचिंग, रियली डियर फ्रेंड, आप सबको लग रहा होगा कि मैं कोई स्टोरी बोल रहा हूँ, बट व्हाट इज द रियलिटी। आई एम नॉट फीलिंग शाय टू टेल एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे कोई शर्म नहीं आ रही कि मैं ये जो बोल रहा हूँ मुझे बोलना चाहिए नहीं। मिस्टर हरि मोहन जी, वी बोथ ज्वाइंड इंग्लिश कोचिंग टुगेदर। आई हैव आल्सो नोट्स ऑफ दोस डेज। हम दोनों ने एक साथ ही कोचिंग ज्वाइन की और मेरे पास अभी भी वो नोट्स रखे हुए हैं, बिल्कुल लो लेवल नोट्स जहाँ पे मैं कुछ नहीं जानता था। He helped me too much during the classes, while attending the classes. Then 4 months went. After that, we saw what is the improvement ourselves. There was nothing. 4 महीने होने के बाद हमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। एक्चुअली इंग्लिश क्लासेस को लोगों ने बिजनेस बना लिया है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे जीवन में, उसे ही बिजनेस बना लिया है। हम लोग सोचते हैं कि हम कोई इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन किए और 60 दिन में हम इंग्लिश सीखकर बाहर आ जाएंगे। यार दोस्तों, हम बचपन से इंग्लिश पढ़ते आते हैं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मैनी कोर्सेज कर लेते हैं, फिर भी हम इंटरव्यू में अपने आप को सही तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जो आदमी 15 साल पढ़ के आता है, 18 साल पढ़ के आता है, उसे 18 दिन और 60 दिन में कैसे पूरा कर लेगा। नाउ कंपनीज आर हायरिंग दोज स्टूडेंट्स से। प्लीज सर, ओवर टू यू। अभी जहाँ तक सर ने, अखिलेश सर ने मुझे बताया कि उनके यहाँ के एक स्टूडेंट जस्ट वेंट फॉर द इंटरव्यू और उन्होंने सभी लेवल क्रॉस किए और पास किए, बट लास्ट में उन्हें क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। यू नो दैट यही तो कम्युनिकेशन स्किल है, यही तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जहाँ हमें समझना होगा वैल्यू ऑफ द इंग्लिश, एंड वी विल हैव टू डू वर्क ऑन दैट।
I taught many students in my life who were zero and they became hero. तो दोस्तों डरने की बात नहीं है, इंग्लिश है, इस पे हम काम करना चालू करेंगे डेफिनेटली. You know that now for cracking interview you will have to learn. अब क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें हम रट के जाते हैं कि tell me about yourself रट के जाते हैं. Why do you want to join my company? You know that now there are some questions which are very easy. बट क्या होता है कि जब हम रट के जाते हैं तो इंटरव्यूअर समझ में आ जाता है कि हाँ आप अपने से बोल रहे हैं या जस्ट रट कर बोल रहे हैं. तो इंटरव्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू जस्ट स्पीक इंग्लिश. अब आप जब भी कोर्स ज्वाइन करते हैं इंग्लिश जस्ट बोलना चालू करिए. थोड़ा बहुत टूटी फूटी इंग्लिश हमारे जैसे बोलते हैं ना सब लोग कि नहीं, स्टार्ट तो करिए, कहीं से भी तो स्टार्ट करिए. वो दिन कब आएगा जब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें आज इंटरव्यू फेस करना सबसे बड़ा चैलेंज है आजकल. इंटरव्यू में कि कोई एक राउंड नहीं होता है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, फिर HR के बाद डायरेक्टर राउंड, फिर जब जाके कंपनी हायर करती है. क्योंकि कंपनी आपको अच्छी तरह से परखना चाहती है कि हाँ आप उसके प्रोडक्ट को, उसके साइट को आप अच्छे से डील कर पाएंगे कि नहीं. और मोस्टली कंपनी आजकल तो फॉरेन की कंपनियां हैं, इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं. दे आर गिविंग गुड प्लेसमेंट फॉर एवरीवन. देन वी विल हैव टू नो अबाउट इट. इंग्लिश की जर्नी थोड़ा सा कठिन है, बट इतनी भी कठिन नहीं कि हम कर ना सकें. बट ज्वाइन करिए कहीं भी इंग्लिश क्लासेस, अपने हरि मोहन सर से या अपने डीन सर से, अखिलेश सर से अंडर गाइडेंस लीजिए उनसे. और वट एवर विल यू नीड हेल्प ऑफ मी फ्रॉम दिल्ली, देन आई विल डेफिनेटली डू. Because I also want to tell something about my state level students, and I am very happy that today I am among my state level student, district level students. अभी तो मैं, यदि आपके पास कोई स्टूडेंट्स के पास कोई क्वेश्चन हो तो he can arise the question. Before some time Mr. Ravi just asked me question from Lucknow. He is one of also my good student कि हम जापानीज को कैसे समझें और कैसे आगे बढ़ें, इसके हमें क्या बेनिफिट्स. या डियर स्टूडेंट्स, इफ वी लर्न इंग्लिश, इंग्लिश के ही इतने फायदे हैं कि आप इंडिया में रह करके और AKS के डिग्री के साथ आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको 50,000 प्लस कोई भी दे देगा. बट आपको समझना पड़ेगा वैल्यू ऑफ द इंग्लिश. ऐसा नहीं कि हम कहीं बिल्कुल जाते, सपोज दैट इंटरव्यूअर आस्क यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ या टेल मी स्टडी डेली रूटीन एंड ही इज टेलिंग दैट यू हैव टू जस्ट सेल दिस प्रोडक्ट. तो वही समझ जाता है कि हाँ आप रट के आए हैं कि आपके कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है या वीक है. रवि सर, he is also interested to learn Japanese, understand, he will come just Delhi soon. He is working over there and he want to say that I will learn Japanese by hook or by crook. मैंने भी कहा कि जिस दिन आदमी सीखना छोड़ देता है उस दिन से वो आगे बढ़ना ही छोड़ देता है. हम किसी भी एज के हों हमें सीखते रहना चाहिए, किसी भी पोस्ट में हो हमें सीखते रहना चाहिए. यू नो आई एम 40 प्लस. I started my journey from zero and still I am in front of you. You all know that ये भगवान की ही कृपा है, माँ शारदे की ही कृपा है कि आज मैं दिल्ली में, मेरे पास सब कुछ है, खुद का कोचिंग है, खुद का घर है मेरा, खुद का एक स्टूडेंट का बहुत अच्छा परिवार है. मैं प्रोफेशनल नहीं, मैं पर्सनल टीचर हूँ. जैसे लोगों के फैमिलियर डॉक्टर होते हैं दोस्तों, मैं दिल्ली में फैमिलियर टीचर हूँ. Once who learned from my coaching, then they never just forget me. They always send student of me. हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं and I teach from my heart and soul. I never cheat student because student make us teacher. स्टूडेंट ही हमें टीचर बनाते हैं. सबसे पहला तो धन्यवाद हमें स्टूडेंट्स का ही करना चाहिए कि they have given us golden opportunity to become a teacher. जब suppose I am expert teacher today, but why should I forget? Yeah, how should I forget that day when I had no any idea and experience about teaching? मैं वो दिन कैसे भूल जाऊं
जब मैं किताब लेकर के स्टूडेंट को बोर्ड पर लिख करके पढ़ाता था, उन्होंने तो मुझे झेला हुआ है ना, है, उन्होंने ही तो मुझे सिखाया है। हम जितने भी टीचर हैं AKS के या जहाँ पे भी हैं, ये स्टूडेंट ही हमें बहुत अच्छा टीचर बनाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट, कुछ टीचर्स बिकम सेल्फिश एंड दे फॉरगेट देयर ड्यूटी। लेकिन टीचर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। आई लव टू टीच वेरी वेरी वीक स्टूडेंट। मैं अपने आप को तभी अच्छा समझता हूँ कि मैं अच्छा गुड टीचर हूँ जब मैं प्रूव करता हूँ कि हाँ, जो 0 लेवल स्टूडेंट है, हु डजंट नो हाउ टू राइट एंड स्पीक and he doesn't have any idea about the grammar, and I prove him and I just make him to speak, write and understand and crack interview in national and international level, then I think that I am a teacher. Expert को तो सब कोई पढ़ा लेता है। The person who has lots of communication skill and they come and join my classes, उनको पढ़ाने में तो कुछ हमें कुछ नहीं होता है। लेकिन टीचर वही हैं जो हर स्टूडेंट को साथ में लेकर चलें। ऐसा नहीं कि आपका फेवरेट स्टूडेंट हु इज एक्सपर्ट इन द क्लास, हु इज एन इंटेलिजेंट इन द क्लास, वी शुड टीच दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। नो 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 नो, हमें उसके लेवल को वीक स्टूडेंट को भी करना चाहिए। इन माय क्लासेस आई नेवर टीच, you know that ना, more than 10 student. I always in one batches I teach only 10 students because I can guide them, I can focus them. I am owner, I am teacher, I am servant of my coaching. मैं वहाँ का ऑनर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ। नो वन स्टॉप इज देयर, आई ओनली टीच माई सेल्फ सिंस 6 till 12 PM, 6 AM to 12 PM। एंड यू नो मेरी क्लासेस की वेटिंग लिस्ट भी बहुत होती है और लोग वेट करते हैं कि हाँ, हम राज सर की क्लासेस या एक क्वेश्चन है स्टूडेंट का या कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? मैं अभी बताता हूँ। माई सेंटर इज लोकेटेड एट लक्ष्मी नगर इन दिल्ली एंड पीपल नो मी राज सर इंग्लिश कोचिंग, RSEC, राज सर के नाम से जाना जाता हूँ मैं। लक्ष्मी नगर पिलर नंबर 48। आप किसी से पूछेंगे राज सर कौन है, वो आपको वहां से पहुंचाएगा। पीपल ट्रीट मी एज हियर सिटीजन। यहाँ आप देखेंगे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े, उससे सब रिस्पेक्ट करते हैं लोग। इतना सम्मान तो DU के प्रिंसिपल का नहीं करता है जितना मुझे लोग सम्मान देते हैं, है ना। बिकॉज आई एम कनेक्टेड देम विद हार्ट एंड सोल, क्योंकि मैं उनके सच्चे दिल से एकदम जुड़ा ही रहता हूँ। 24 आवर्स आई एम रेडी टू हेल्प देम। और मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाता ही हूँ दोस्तों, नो टाइम पास। यू नो आई हैव बीन सिटिंग हियर सिंस 3 PM and I have your university has given me duty to speak and just connect everyone। तो दोस्तों आप बिल्कुल चिंता न करिए इंग्लिश के उसमें, इंग्लिश लेकिन आज ही से शुरू करिए आप कि हमें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। क्योंकि आप वंस यू वेस्ट द टाइम यू कांट गेट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। टाइम इज एवरीथिंग। एवरीवन से हमें क्यों कहा जाता है, बचपन से क्यों सिखाया जाता है कि टाइम ही सब कुछ है, टाइम मनी है, टाइम गोल्ड है, टाइम सिल्वर है। दोस्तों मैं तो कहता हूँ टाइम तो डायमंड है। वंस टाइम गोज नोबडी कैन कैच इट। एक बार टाइम जाता है दोस्तों तो फिर हम उसे पकड़ ही नहीं सकते हैं। आज का दिन 3 to 4 गया तो हम कैसे पकड़ पाएंगे। इसलिए मेक ए प्लान ऑन योर पेपर एवरी डे। एक पेपर में बनाइए कि मुझे 24 आवर्स क्या करना है। I just want to take you back before 10 years, 15 years. What did we used to do when I was a student? हम 10 साल 15-20 साल पहले जब स्टूडेंट थे तो हम क्या किया करते थे, एक चिट चिमकाते थे और कमरे में लगाते थे कि 4 से 5 हम ये पढ़ेंगे, 5 से 6 ये पढ़ेंगे, 7 से 8 ये पढ़ेंगे, हमारे खेलने का टाइम होगा। एंड nowadays we have forgotten that thing. Why? Because of MTF, मोबाइल, टेलीविजन एंड फ्रेंड। जब से ये तीनों चीजें आई हैं स्टूडेंट अपने आप को डेमोलाइज कर रहा है, ध्वस्त कर रहा है। वाई? हमें ये मालूम होता है कि हमें 4 से 5 मोबाइल चलाना तो चलाना है। लीव दैट इज ए स्वीट पॉइजन। छोड़िए ये, अपने पढ़ाई के अलावा कोई भी अननेसेसरी चीज का यूज मत करिए, क्योंकि ये आपको एक ऐसे कुएं की ओर ले जा रही हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो हम क्यों छुएं? आई हैव मोबाइल एंड एवरीबडी नोज दैट I don't operate anything. I just take the call and make the call. Understand? I don't do anything. And I have been using my mobile for
5 years, मैं 5 साल से मोबाइल यूज कर रहा हूँ, स्टिल माई मोबाइल इज न्यू। अंडरस्टैंड? मेरा सिर्फ जो काम है लोगों की आउट गोइंग कॉल और इनकमिंग कॉल वही होता है, इसके अलावा नहीं कि मैं पता चला कि मैं व्हाट्सएप खोल लिया और 1 घंटे चैट करूँ। नहीं, हमारा टाइम ही तो सब कुछ है दोस्तों। यदि हम कोई चैप्टर कोई भी किताब 1 घंटा डेली पढ़ते हैं और उसे कंटिन्यू करते हैं, 365 डेज में हम उस किताब के राइटर बन जाएंगे और उस किताब को हम दूसरी तरीके से लिख लेंगे। तो हम क्यों नहीं समझते वैल्यू टाइम की? मैंने तो अपनी टाइम का पूरा यूज किया। इन लॉकडाउन, व्हेन देयर वाज लॉकडाउन, आई अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ द टाइम। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टू work on something and that I learned something from that. मैं 40 प्लस होने के बाद भी कुछ डेली सीखने का प्रयास करता हूँ। अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं कि मैं अब 40 प्लस हो गया, मेरे पास सब कुछ है तो मैं नहीं सीखूं। हमारे यहाँ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसे आप ले सकते हैं। देखिए, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी कौन से परिवार से आते हैं? ही वाज टीसी इन झारखंड, आई थिंक दैट एट खड़गपुर। उन्होंने, वो सोचते हैं कि हाँ नहीं, अब मैं टीसी हूँ, कमा रहा हूँ, बस हो गया, क्या करूँगा। बट ही सेट अ ड्रीम इन हिज लाइफ। जब उन्होंने ड्रीम किया, उस जॉब को छोड़ा, तो आज देखिए व्हाट इज ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द क्रिकेट एंड पीपल नो हिम। ही इज ए डार्क हॉर्स पर्सन, अचानक सफल होने वाले पर्सन है वो। तो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट फियर फ्रॉम द इंग्लिश। whenever you will start to work on that, definitely you will be the winner. Nobody can stop you to do, because when I hadn't anything, and once story I would like to share in front of you. This is not cock and bull story, this is a real story in front of us. मैं आप सबको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ which is real in my life. Once, एक बार my father told me that अब मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। I was doing MA from मैहर यूनिवर्सिटी। मैं मैहर से MA कर रहा था। माई फादर देन पापा ने बोला कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, अब आपको खुद ही करना पड़ेगा, या तो आप पढ़ाई छोड़ दो और मेरी कंपनी में 1500 रुपये पर मंथ से ज्वाइन कर लो। बट मुझे किसी ने बताया था, मेरे एल्डर्स बताए थे, एक बार आपने पढ़ाई कर लिया तो जीवन में लड़ने के बहुत ही काम आएगी। मैं सोचता रहा रात भर, व्हाट शुड आई डू। दैट डे आई हैडंट एनी ऑप्शन। आई सेड माय फादर, पापा प्लीज मुझे 1 साल और संभालिए, मैं 1 साल के बाद आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ मनी टू अर्न। बोले नहीं यार, नहीं हो सकता, समझो आई एम अर्निंग ओनली 1800 रुपीज एंड यू ऑल आर 4 ब्रदर, हाउ कैन आई जस्ट रन द फैमिली इन 1800 एंड वी आर लिविंग इन रेंट। और हम यहाँ रेंट पे रह रहे हैं तो हम कैसे हैंडल करेंगे? मैं परिवार का सर्वाइव कैसे करूं, यहाँ का किराया कैसे करूं, आपकी फीस कैसे दूं? I was weeping too much on that day. I had no option. What should I do? Listen, there was my neighbor whose name is Satish Mishra, who used to know me properly. He helped me. He gave me 2000 rupees. उन्होंने 2000 रुपए दिया और बोला बेटा छोटा मोटा 500-700 रुपए जो तुम्हारी फीस है वो भर दो और छोटा मोटा बिजनेस चलो। मैं आई हैड नो ऑप्शन कि कौन सा बिजनेस करूं, बिकॉज 20-21 साल की उम्र में लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि और उस समय तो ज़्यादा कुछ वो ही नहीं था। तो आई स्टार्टेड टू जस्ट सेल रिसोल पाए एंड पूरे सब्जी। मैंने एक ठेला लिया और वहीं मैहर माता मंदिर के नीचे रेहड़ी लगाना शुरू किया और चाय समोसा बेचता था, चाय समोसा और पूरी सब्जी बेचता था। Can you believe that a person who is in front of you, did he do like this? अभी बिलीव करने लायक नहीं होगा, लेकिन who knows me properly, then you can ask them, they will definitely tell you. क्योंकि मुझे वैल्यू समझ में आई थी उस दिन स्टडी की कि हाँ वैल्यू क्या है। इसलिए उस दिन उस रात मैं रो के सोया नहीं था, सिर्फ सर्च किया था हाउ कैन आई बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ। तब मुझे रास्ता पता चला, यार भगवान ने हमें हेल्दी बॉडी दी है, इसका हमें यूज करना है और यूज करके हमें सब मिल जाएगा। वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स, नो डाउट अबाउट इट। आज हम अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट हैं। कब तक रहेंगे? शादी के बाद वो हमें अलग कर देंगे, हम खुद पेरेंट्स बन जाएंगे, तो व्हाट वी विल डू?
हमें तो कुछ करना होगा ना, तो क्यों ना करें हम, क्यों ना शुरुआत करें। मैंने चाय बेचा, समोसा बेचा, रात की पार्टियों में जाता था, 60 रुपीज़ पर नाइट मिलता था मुझे, पूरी सब्जी बनाने के लिए जाता था। लेकिन मैंने उसे अपनी किस्मत नहीं बनाई, मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम करेंट, हाउ शुड आई सर्च द सॉल्यूशन। मुझे सॉल्यूशन मिला, मैंने उसे छोड़ा, एंड आई ज्वाइंट अनदर जॉब दैट इज ए प्रीस्ट जॉब। माँ मैहर देवी के चरणों में गया, वहाँ मैंने वहाँ किया। इसके बाद आई कंप्लीटेड माई एजुकेशन, फिर मैं दूसरी जगह गया, उसको छोड़ करके दूसरी जगह गया, तीसरी जगह गया, चौथी जगह गया, और करता रहा। When I came in Delhi and I was about to select in a, you know that in 2006 जब मैं दिल्ली आया, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू फेसेस किए और फर्स्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो जाता था। Why? Because I had good command of English. You know, in Hindi I always say English है जहाँ तरक्की है वहाँ। तो you know that रोटी कपड़ा मकान, these three things are necessary in our life. ये तीनों चीज़ें जरूरी हैं। इसके साथ एक चीज़ और जोड़ लीजिए, दैट इज एनी लैंग्वेज। ये बहुत ही मस्ट है, बोलना बहुत ही जरूरी है। गूंगे होके मत पढ़िए इंग्लिश। whenever you will start with this, you will not speak, then कभी भी कुछ नहीं सीख सकते हैं। और आपके गाइडेंस तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके साथ सब कुछ हैं, बट आई एम हियर अलोन, नोबडी गाइड मी। हमें खुद ही सर्च करना पड़ता है। मेरा छोटा भाई धार डिस्ट्रिक्ट में आईपीएस ऑफिसर है। यू नो दैट ही डिड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। व्हेन ही वाज नॉट अबाउट टू सक्सेस इन हिज लाइफ, देन ही यूज्ड टू वीप। जब वो सक्सेस नहीं होता तो रोता था, बोलता भाई मैं क्या करूं यार, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, व्हाट शुड आई डू, आई एम ऑलवेज जस्ट फेसिंग फेल 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 फेल। अरे मैंने कहा फेल 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 व्हाटएवर, अब सक्सेस 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 आएगा आपके जीवन में। जस्ट डू इट, कीप इट, कंटिन्यू। हो सकता है कि अब आपकी किस्मत पे आ ही जाए सक्सेस। एज यू नो दैट ना, चाणक्य सिलेक्टेड चंद्रगुप्त। एवरीबडी नोज अबाउट द चंद्रगुप्त एंड चाणक्य। हाँ, आई विल इंटरप्ट यू सर। ओके सर, इट्स 4 PM। ओके ओके ओके, और सर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है, डाउट है एक, हाँ तो इसको बस पूरा करके सर हम बाकी कल करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि गूगल मीट में हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको गूगल मीट में ज्वाइन करा दें। सर, व्हाट इज द क्वेश्चन? स्टूडेंट्स डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट कर पाए सर। हाँ, क्वेश्चन क्या है सर? कल के सेशन में करेंगे। आज हम सर ये एक क्वेश्चन है सर, या ऐसे कौन से कॉमन क्वेश्चन है सर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पूछे जाते हैं सर इंटरव्यू के टाइम पे? इंटरव्यू में जब भी आप जाते हैं, आप, हालांकि हरी सर बोल रहे हैं कि थोड़ा शॉर्ट टाइम है, इंटरव्यू जब भी आप देने जाएं तो पहला तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। और इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा बोल देते हैं, 2 लाइन 3 लाइन वही रटी रटाई, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। जैसे बोलते हैं दिस इज राजकुमार 40 years old फ्रॉम दिल्ली एट सकरपुर, एज फार एज माय क्वालिफिकेशन आई पास ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर, आई हैव आल्सो डन दिस, एज फार एज माय फैमिली बैकग्राउंड, माय फादर इज लाइक मदर इज लाइक, अंडरस्टैंड। इस तरह से टेल मी अबाउट योरसेल्फ होता है। तो कंपनी क्या करती है कि जब आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ अपने आप को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं तो कंपनी समझ जाती है कि हाँ ये मेरे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर लेगा। जब वहां से चलते हैं तो कंपनी बोलती है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अब आपके पास वहां रटा हुआ है तो वो समझ जाएंगे। फिर पूछते हैं यार आपने क्या कोई मैच देखा, क्रिकेट मैच देखा है, उसके बारे में, कोई मूवीज आपने देखी है उसके बारे में 4 लाइन डिस्क्राइब करिए, ठीक है। और इफ देयर इज नथिंग, तो आपके हाथ में मोबाइल है तो दे विल टेल यू दैट हाउ कैन यू सेल दिस मोबाइल, इस मोबाइल को आप कैसे सेल करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि आपने जो डिग्री कंप्लीट की तो आपने क्यों चूज किया वो। इफ योर हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, यदि आपकी हॉबी क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट के बारे में बताइए। तो हम अपनी हॉबी तो बना लेते हैं कि माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन हम 10 लाइन उसमें नहीं बोल पाते हैं, वहां फंस जाते हैं। इंटरव्यूअर जो एचआर होता है, ही इज वेरी एक्सपर्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एवरीवन, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो समझ जाते हैं आपसे क्या आता है क्या नहीं आता है। इसलिए इसकी